Hello students, good morning to all of you. Students, as you know, your half yearly exam is starting from 21st September. Okay na? And I have already given the portion that is unit 2 and 3. Okay? And we have completed this chapter. Okay na? If something is incompleted, I will complete it along with revision. Understand? So now we will have a quiet revision of unit 2, paw and wings. Okay? I will tell you some important points. Okay na? So listen carefully. Paw and wings. Okay? Some important lines from here. Page number 31. Okay? So take out page number 31. From the biggest to the tiniest microscopic creatures, animals have adapted. Okay na? Adapted beautifully to thrive in their respective habitats in a lot of interesting ways. Okay, be it their body covering, body size, placement of eyes, breathing and feeding organs. Okay, kinds of feeds, etc. The animals have it all. From the biggest to the teeniest microscopic creatures, animals मीन्स जितने भी बिगेस्ट से लेकर टीनिएस्ट छोटे से छोटे माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सभी में क्या होते हैं, कुछ ब्यूटीफुली उनके बॉडी में कुछ एडेप्टिव फीचर्स होते हैं जिसके कारण वो हर जगह पर अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं. वो फीचर्स उनके बॉडी कवरिंग होते हैं, बॉडी साइज होते हैं, प्लेसमेंट ऑफ आइज होते हैं, ओके ना, ब्रीथिंग एंड फीडिंग ऑर्गन्स होते हैं एंड काइंड्स ऑफ फिट होते हैं. ये सारे चीज के कारण वो लोग हर मौसम में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, अपने हैबिटेट में वो आराम से रह सकते हैं. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट पेज नंबर 32. पेज नंबर 32 here is body covering. Okay na? Body covering means different animals found on the earth have different body covering. Understand na? Different animals found on the earth have different body covering na? So the body covering help animals to live in a particular habitat. Understand? जितने भी हैबिटेट उनके जो बॉडी कवरिंग होते हैं वो उनको पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए उनको बहुत हेल्प करते हैं. ओके, जस्ट लाइक birds. Okay na? Birds of body of birds is covered with feather. Do you know? Everybody has known na? So body of birds is covering with feather and feather protect them from cold, rain and help them to fly. Understand? Number 2, fish and reptiles. Fish and reptiles have skulls. Okay na? Because the body of fish is covered with skulls and skulls protect them from external danger. Okay, external danger से उन्हें वो protect करते हैं. And some animals have fur, just like sheep, bear. Okay ना? Sheep and bear possess special body covering, that is fur. Okay, fur and wool that protect them from extreme cold and rain. Understand? And some animals have shell. For example, tortoise, snail, turtle. Understand ना? Tortoise, snail, turtle ये सब में क्या होते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए सेल होते हैं. एंड सेल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर. वो सेल क्या होते हैं, उनको कोई भी बाहरी डेंजर से उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं. अंडरस्टैंड? सो आप लोग को समझ में आ गया बॉडी कवरिंग किस तरह से उन्हें एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए प्रोटेक्ट करते हैं ना. बर्ड्स के बारे में जान गए. फिश, रेप्टाइल्स, सम एनिमल्स, जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो शीप एंड बियर का. ओके ना? सम एनिमल्स हैव शेल में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो टॉर्टॉइस, स्नेल. ओके ना? एंड टर्टल. ये सब क्या है, हेल्प करते हैं उनको अपने पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स एंड फिश. Animals that live in severely cold region, ठीक है, have a thick layer of fur for protection. Animals जो भी इस काफी कोल्ड रीजन में रहते हैं उनके बॉडी पे क्या पाए जाते हैं, बहुत ही थिक लेयर, फर के बहुत ही थिक लेयर पाए जाते हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं. ओके ना? मोस्ट मैमल्स हैव हेयर. ओके, मोस्ट मैमल्स हैव हेयर ऑल ओवर देयर बॉडीज. इन सम दिस हेयर इज कॉल्ड फर. जो उनके बॉडी जितने भी मैमल्स होते हैं उनका पहचान क्या होता है, उनके बॉडी में फर पाए जाते हैं. वो फर को क्या कहते हैं, आप हेयर जो पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, फर कहते हैं.
Fur trap air next to the animal's body, thus helping the animals retain the body heat. More fur means more insulation. Understand? Animals that do not hibernate या migrate in the winter grow a new coat, ठीक है, of fur या इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ देयर फर कोट. हम लोग जानते हैं ना माइग्रेट करने के लिए, माइग्रेट मीन्स एनिमल्स जब कंडीशन उनका सुटेबल कंडीशन नहीं होता तो वो माइग्रेट करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं फूड और शेल्टर के लिए. बट बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, हाइबरनेट नहीं होता है, वो माइग्रेट नहीं करते हैं विंटर में. तो उनमें क्या होता है, न्यू कोट फर का उनके बॉडी में इंक्रीज होते रहता है. ठीक है, नया नया स्किन निकलते रहता है नए मौसम में. तो इस तरह से वो अडेप्ट कर लेते हैं उस इन्वायरमेंट को. ओके ना. वाल्सरस एंड सील्स हैव अ थिक लेयर ऑफ ब्लबर. उनके बॉडी में जो फैट होता है उसे क्या कहते हैं, ब्लबर. अंडर देयर थिक स्किन विच प्रोवाइड देम इंसुलेशन इन द फ्रीजिंग वाटर. ये जो सील्स होते हैं ये कहाँ होते हैं, वो उनके बॉडी में बहुत ही थिक लेयर होते हैं ना फैट के, जिनको ब्लबर कहते हैं. वो उनको फ्रीजिंग वाटर में रहने में सुटेबल करते हैं. अंडरस्टैंड ना. नेक्स्ट स्किन एम्फीबियंस, आप इसको पढ़ोगे. सैलेमेंडर, फ्रॉग, टोड, सभी के बॉडी में क्या क्या एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं ये आपको इस यहाँ पर दिया हुआ है. ठीक है, आपको ये पढ़ोगे आपको ये समझ में आ जाएगी. इसमें कोई इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड नहीं है, आप इसको समझ जाओगे. सैलेमेंडर, टोड्स. ओके, टोड्स में क्या होते हैं, लंग्स भी होते हैं. फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग एंड टोड्स डेवलप लंग्स एज दे बिकम एडल्ट. जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनमें लंग्स होते हैं, बट जब ये एडिशनल ऑक्सीजन थ्रू देयर स्किन, बट वो जब हाइबरनेट होते हैं ना, सॉइल के नीचे चले जाते हैं तो उस समय उनके बॉडी में ऑक्सीजन कैसे आ जाता है, उनके स्किन के थ्रू. ओके ना. सम स्पेसीज जैसे सैलेमेंडर ब्रेथ ओनली थ्रू देयर स्किन. सैलेमेंडर जो होते हैं वो केवल स्किन. सैलेमेंडर कौन है, देखिए इसको सैलेमेंडर कहते हैं. ये क्या है, स्किन के थ्रू ये करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं. ओके, इस तरह से आप इसको पढ़ोगे. इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं समझ में आया मुझे पूछिएगा. ओके ना. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.